So today we are going to understand the concept of a switch. Switch के बारे में आज बात करेंगे. So first of all, what do you mean by a switch? अगर let's say आप switch use करते हो अपने network में तो switch का significance क्या होता है? सबसे पहले मैं वो बताता हूँ. A switch is basically in the context of a networking is a high speed device which is going to receive your incoming data packets and in return it is going to redirect them to their destination on a local area network. So let's say आपका switch क्या करता है? It is going to receive your incoming data packets and in return it is going to redirect them to their destination on your local area network. So a LAN switch basically operates on your layer 2 और ये layer 2 कौन सी होती है? OSI की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और जो layer 2 होती है वो होती है हमारी data link layer. In some cases our switches also work on a network layer of OSI model. Okay? तो अभी हम दो स्विच देखेंगे. एक स्विच इसमें से वर्क करेगा डेटा लिंक लेयर पे और दूसरा वाला वर्क करेगा आपकी नेटवर्क लेयर पे. सो बेसिकली अ स्विच इज अ डिवाइस दैट चैनल्स इनकमिंग डेटा फ्रॉम एनी ऑफ मल्टीपल इनपुट पोर्ट्स. आपने कभी स्विच का देखा है एक डायग्राम? तो स्विच के पीछे ना काफी सारे मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं. ओके, so basically a switch is a device that channels incoming data from any of multiple input ports to the specific output port that will take the data towards its intended destination. तो जिस पोर्ट पे आपको डेटा आपको सेंड करना होगा उसी पे आपका स्विच उसको फॉरवर्ड करेगा. So basically in a telecommunication network a switch is a device that channels incoming data. ये वही वाली डेफिनेशन शायद रिपीट होगी तो इसको इग्नोर कर दो. इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा स्विच की एग्जैक्ट वर्किंग. So a switch determines from the IP address in each packet which output port to use for the next part of its trip to the intended destination. This is the exact working of your switch. To determine what is your intended destination. Let's say किसके पास आपको पैकेट वगैरह भेजना. This is the significance of your switch. So in an open system interconnection OSI communication model, a switch perform on your layer 2. तो लेयर 2 मैंने आपको बता दी कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर. सो इट सिंपली लुक्स एट ईच पैकेट और अ डेटा यूनिट एंड डिटरमाइंस फ्रॉम अ फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस आपको कौन सा होता है? योर मैक एड्रेस. ओके, विच डिवाइस अ डेटा यूनिट इज इंटेंडेड फॉर एंड स्विचेस इट आउट टुवर्ड्स दैट डिवाइस. तो आपका स्विच जो है वो कौन सा एड्रेस पे वर्क करता है? इट इज गोइंग टू वर्क ऑन योर मैक एड्रेसेस. लेट्स से अगर आप एक राउटर के साथ कनेक्ट करोगे तो किस वाले को भेजना है? तो उस मैक एड्रेस पे आप फॉरवर्ड कर दोगे. सो बेसिकली योर स्विच इज यूज्ड टू मेक अ यूज ऑफ अ फॉरवर्ड फिल्टर और अ फ्लड फ्रेम बेस्ड ऑन योर मैक एड्रेस टेबल एंट्रीज. तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे याद रखना. इट इज गोइंग टू फॉरवर्ड फिल्टर एंड फ्लड योर फ्रेम्स बेस्ड ऑन योर मैक एड्रेसेस. A switch basically comprises of a many full duplex ports. Full duplex आपको पता है क्या होता है? जिसमें okay. So let's say it has many full duplex ports to segment a large local area network into a many smaller collision domains. अभी बताओ आपने कभी collision domains के बारे में पढ़ा है नेटवर्किंग में? Okay. तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि exactly collision domain होता क्या है with the help of an example or a diagram. So it's operate at the link layer of your TCP/IP protocol suite and each port on a switch has its own collision domain. तो एक collision domain होता क्या है इसको एक बार समझते हैं. A collision domain is a term where the data packets can collide with one another while being sent. तो let's say नेटवर्क में आप एक डेटा भेज रहे हो और वहाँ से भी एक डेटा आ रहा है तो बीच में वो अगर कोलाइड हो जाते हैं, let's say आपस में टकरा जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? collision domain. So a collision basically occur when two devices sends a packet at the same time on a shared network segment. So your collision will going to occur. The packet collide and both devices must send the packet again. तो पैकेट ना उसको मिलेगा ना मेरे को मिलेगा, बीच में हो जाएगा मेरा collision. तो आपके नेटवर्क को भी दोबारा पैकेट भेजना पड़ेगा और उसको भी दोबारा पैकेट भेजना पड़ेगा. इस केस में होगा क्या? इट इज गोइंग टू reduces your network efficiency. आपके नेटवर्क एफिशिएंसी से इस पे काफी अफेक्ट पड़ेगा. अब लेट्स से कोलाइजन डोमेन है ना, दो टाइप के होते हैं. एक होता है वायर्ड के लिए. तो वायर्ड के लिए जो आप कोलाइजन डिटेक्शन यूज करते हो वो होता है CS में CD. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इट स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलाइजन डिटेक्शन. अब ये करता क्या है?
Basically, it comprises of a set of rules determining how network devices respond when two devices attempt to use a data channel simultaneously. Let's say उसने भी पैकेट भेज दिया और इसने भी पैकेट भेज दिया, तो CSP/CD किस तरीके से वर्क करेगा? So let's understand this with the help of a diagram. तो यहाँ पर let's say मेरे पास एक वेयर हाउस A और एक यहाँ पर मेरे पास वेयर हाउस B है. अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैंने दो वेयर हाउसेज बना रखे हैं. लेट्स से इस वेयर हाउस और इनके पास है ना एक ही रोड है, ध्यान से बना, इसके पास सिंगल वे रोड है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली दे वांट इज, अब इस ए को है ना लेट्स से एक ट्रक भेजना है इस वेयर हाउस बी में. लेट्स से उस ट्रक के पास कुछ सामान है और उसको डिलीवर करना है वेयर हाउस बी के पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वेयर हाउस ए इज गोइंग टू लिसन दिस वेयर हाउस बी. तो यहाँ से लिसन करेगा कि लेट्स से आपकी तरफ से कोई ट्रक तो नहीं आ रहा. तो ये जो लिसनिंग का प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? कैरियर सेंस. इसको आप कहते हो कैरियर सेंस. मींस यू आर गोइंग टू सेंस कि यहाँ से कोई आपके पास ट्रक तो नहीं आ रहा. अब लेट्स से बी ने बता दिया कि नहीं, मैं आपको कोई ट्रक नहीं भेज रहा. सो व्हाट ए विल गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू सेंड हिज ट्रक. बट लेट्स से कभी कभी नेटवर्क लेटेंसी के चक्कर में ये जो लिसनिंग होती है ये कभी कभी फेल्ड हो जाती है. तो होता क्या है, ए भी आपको ट्रक भेज देगा और बी भी ट्रक भेज देगा. अब इससे होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, कोलाइजन. ए भी टकरा गया और बी भी टकरा गया. अब देख लो आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी हो गई बेकार. तो अब CSP/CD प्रोटोकॉल करके व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या करोगे, यहाँ पर है ना टाइमर सेट कर दोगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए, कि मेरा जो ए है वो मेरा पैकेट इस वाले टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भेजेगा और लेट्स से ये जो मेरा बी है इस वाले टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग भेज देगा. सो लेट्स से यहाँ पर आपको 5 और 8 दिख रहा है, थोड़ा ब्लर है, तो 5 और 8 आपको दिख रहा है. सो लेट्स से ए ने अपने टाइम इंटरवल सेट कर दिया 5 की, मतलब विद इन 5 सेकंड्स आई एम गोइंग टू सेंड माय पैकेट. और बी ने क्या टाइम सेट कर दिया 8 की, विद इन 8 सेकंड आई एम गोइंग टू सेंड माय पैकेट. तो होगा क्या कि जैसे ही 5 सेकंड ओवर होंगे तो आपका ए पैकेट भेज देगा और जैसे बी का 8 मतलब जब 8 टाइम इंटरवल कंप्लीट होगा तो फिर बी आपका भेज देगा. तो इस तरीके से आपकी कोलाइजन डोमेन नहीं होगा. इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, बट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. तो समझ में आएगी किस तरीके से कोलाइजन इसमें अवॉइड होती है, बाय सेटिंग द टाइम इंटरवल्स, कि आप इस वाले टाइम में भेजो और आप इस वाले टाइम्स में भेजो. वो इंटरवल आपको सेट करने पड़ेंगे. ओके. अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है CSP/CD इज यूज्ड इन हाफ डुप्लेक्स एनवायरनमेंट. CSP/CD आप कहाँ पर यूज करोगे? हाफ डुप्लेक्स एनवायरनमेंट्स में. एक और सिग्निफिकेंस होता है आपका CS में CA का. दिस CS में CA स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलाइजन अवॉइडेंस. वहां पर था कोलाइजन डिटेक्शन और यहाँ पर था कोलाइजन अवॉइडेंस. तो यहाँ पर किस तरीके से कोलाइजन आप अवॉइड करते हो? सो बेसिकली दिस CS में CA इज अ वायरलेस प्रोटोकॉल. तो यहाँ पर लिखा हुआ है 802.11 विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ वायरलेस प्रोटोकॉल. तो CSP/CD क्या करता है? अनलाइक CSP/CD, देखो CSP/CD किसमें डील करता है? इट इज गोइंग टू डील विद द ट्रांसमिशन आफ्टर अ कोलाइजन हैज अकर्ड. जब टकरा जाते हैं उसके बाद आप CSP/CD प्रोटोकॉल फॉलो करते हो कि यार मेरे पैकेट है ना आपस में टकरा रहे हैं. तो बट इन केस ऑफ CSP/CA इट इज गोइंग टू प्रिवेंट कोलाइजन बिफोर दे हैपन. CSP/CA आप कब यूज करोगे? जब आपको कोलाइजन ऑलरेडी आपको मतलब हैंडल करना है, तो यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ CSP/CA. तो यहाँ पर क्या होता है? एज सुन एज अ नोड रिसीव्स अ पैकेट दैट इज टू बी सेंट, इट इज गोइंग टू चेक in order to ensure that the channel is clear, means no other node is transmitting at the time. आप सबसे पहले चेक करोगे कि वहां से तो कोई पैकेट नहीं आ रहा, उसके बाद you are going to transfer your packet. तो if the channel is clear, then the packet is sent. पैकेट आपका भेज दिया जाएगा. So if the channel is not clear, the node waits for a randomly chosen period of a time and then again going to check whether a channel is clear or not. अब इस पे एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. लेट्स से यहाँ पर दो एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट ए और एक एयरपोर्ट बी है. रैंडमली आप उसको समझ लो, दिस इज माय एयरपोर्ट ए एंड दिस इज माय एयरपोर्ट बी. अब एयरपोर्ट ए से लेके यहाँ पर एक लेट्स से प्लेन आपको भेजना है एयरपोर्ट बी की तरफ. तो यहाँ से मेरा प्लेन उड़ेगा और यहाँ पर मेरा लैंड होगा. ओके. सो सबसे पहले कैरियर ए लिसन करेगा आपके कैरियर बी को कि लेट्स से एयरपोर्ट बी आपका क्लियर है कि नहीं है, लेट्स से चैनल क्लियर है कि नहीं है. इसके बाद ये क्या करेगा? एक है ना क्लॉक इंटरवल सेट कर देगा. सबसे पहले इसने ये सुना कि चैनल भी क्लियर है. इसके बाद क्या कर देगा? क्या ना क्लॉक इंटरवल सेट कर देगा. क्लॉक इंटरवल से क्या होगा?
कि जब तक ये वाली क्लॉक कंप्लीट नहीं होगी इस बी की तरफ से कोई पैकेट आपको नहीं मिलेगा। तो लेट्स से आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस क्लॉक इंटरवल आपका प्लेन हो जाएगा यहाँ से उड़ के इधर लैंड, ओके। और इन रिटर्न आपका ये जो एयरपोर्ट बी इट इज गोइंग टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू योर ए कि आपका जो प्लेन था वो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर सी एस में सी ए। इसलिए सी एस में सी ए की मैंने फुल फॉर्म भी आपको क्या बताई थी, कैरियर सेंस मल्टीपल डिटेक्शन कोलाजन अवॉइडेंस, और इसमें एक और आती है विद एक्नॉलेजमेंट। तो ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, मैं इसकी पूरी कर देता हूँ, विद एक्नॉलेजमेंट। दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर सी एस में सी ए। तो कोलाजन डिटेक्शन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या होता है कोलाजन डिटेक्शन।